spoke about postpartum depression. जब when you realized कि you are pregnant actually, तो I think जर्नी वहीं से चालू हुई. कभी ऐसा सोचा क्या कि अगर वो प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू की रहती और ऐसे ही आगे बढ़े रहते? That somebody is pregnant, it is a very happy moment for that person. But for me, it was totally opposite. Career, and we thought this will be a huge setback. And then it was a setback sometime, I feel, but for the जब बच्चा हाथ में तो ध्यान में अरे अभी क्या. And then Pratyush was a premature baby, तो वो भी एक challenge था. रेणुका, जब हम साथ में नहीं थे, you know, तो how did you deal with all the ups and downs? That was the time when I was really emotionally broken down. Total breakdown जो रहता है ना लाइफ का, that was the time. अगर मैं सही में आज सोचूं तो I did not dealt with it. It just got dragged. Because I was not able to handle anything of my own. It was a mess of life at that time. Then I decided somehow I want to come out of it, and I thought education and further studies can take me out of it. So Actually, for you, every time the solution to everything... the solution for me was to study. To study, yeah. So I joined my MS into that particular emotional stress. And then... to give perspective, you had completed your DGO, you worked for 2-3 years, and then again you decided कि तुमको फिर से और PG में जाना है. And actually, स्टडी करना अलग बात है, बट वो और एक स्ट्रेसफुल इवेंट रहता है टू डू पीजी इन इटसेल्फ. क्योंकि देन इट इज ऑल डे एंड नाइट यू आर वर्किंग, यू आर अंडर स्ट्रेस ऑफ योर सीनियर्स, बिकॉज इट इज लाइक हर एक कॉलेज में इट इज़ वेरी नॉर्मल इन अ मेडिकल स्टूडेंट्स लाइफ कि देयर इज रैगिंग, एंड इट वाज देयर टू सम एक्सटेंट. You chose a different pain. So I chose a different pain to overcome this pain, basically. But then gradually when the time started moving on and I started getting little bit subtle over it, और जब हम वापस मिले in the same period we got back again, यानी वो रेसिडेंसी के ही पीरियड में, तो तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि नो, आई नीड हेल्प. आई नीड some help in the form of maybe emotional support or some mental health help like that. And I took that help. I took that decision कि I want to go and take a mental help. And because of that stress, when we were not together, actually मेरा थोड़ा सा postpartum depression वाला phase था, which continued into depression. So I took medicines, I took my therapies, I worked on myself. Actually, अगर ऐसे बोला जाए ना तो I remember मैं कोल्हापुर से वर्धा आता था. Yes. हम वर्धा से अपॉइंटमेंट के लिए नागपुर जाते थे और हम दोनों कंसल्ट करते थे. हमने जब डिसीजन लिया कि साथ में आना है तो we decided कि we will take proper help and then we will go together. तो हम वो नागपुर में सर के पास जाते थे. Yes. एंड देन हम लोग वर्धा आके और फिर मैं वापस कोल्हापुर आता था. फिर उसके बाद भी जब हम लोग वापस मिले, we continued taking mental health help for a long time. I think है ना, यहाँ पे एक चीज़ जो बोलनी चाहिए या मैं जो बोलना चाहूँगा ना कि we should take that IPH, Institute of Psychological Health, and Nadkarni sir. Yeah, they were the turning points of our lives. And our counselor Anchal ma'am. Yes. So they actually helped us a lot, and I feel कि everyone, मतलब मुझे तो नाडकर्णी सर के बारे में ऐसे लगता है ना कि हर आदमी ने ज़िंदगी में एक बार तो उनसे मिलना चाहिए नाडकर्णी सर से. So it helped us a lot. It helped us sail through a lot of struggles safely and sanely. If I have to say the same thing about me ना, तो मैं ये बोलना चाहूँगा ना कि मुझे ये चीज़ सही में, मुझे मेरे जो मेंटर है आर्ट ऑफ लिविंग के, रश्मिन भैया और सलील भैया, उन लोगों ने उस पीरियड में बहुत मदद की. When you were broken down. When I was broken down, or when we were not together. When we were not together, and
पहला 1 साल तो ना मुझे समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या? क्या हुआ है. तो आई वॉज ट्राइंग टू रीच यू आउट थ्रू ऑल पॉसिबल मीन्स, बट जब वो नहीं हो रहा था, वो पूरा ब्रोक, सब क्या बोलेंगे ना, सब धुंधला था. फिर जब ये हुआ कि अब हो ही नहीं रहा है ना, तब वो जो क्या होता है ना, आदमी को रियलाइज़ होता है ना कि अरे ये हो ही नहीं रहा है. एंड उसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन. बट आई विल से कि उस पीरियड में जो उन लोगों ने एंड आर्ट ऑफ लिविंग ने, गुरुजी ने जो, एंड टीचर्स, माय मेंटर्स इन आर्ट ऑफ लिविंग, जो उन्होंने मुझे संभाला है फॉर 1.5 years, एंड द वे दे हैव सपोर्टेड. खास बात तो ये थी ना कि दे वर नेवर ऐसे विथ मी. दे वर ऑलवेज दैट ब्लंट, loving, caring, but very blunt ki what you should be doing. Yeah, that helped me to overcome the things a lot. And after that, yes, we did took help of, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि it should be a proper blend of ancient wisdom and modern साइंस कि ऐसे वो होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी you require some emergency methods, or we can say short term कुछ सोल्यूशन होने चाहिए, एंड सम सोल्यूशंस आर लॉन्ग टर्म. सो अभी थोड़ा और, यू स्पोक अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. तो जब व्हेन यू रियलाइज्ड कि यू आर प्रेग्नेंट एक्चुअली, तो आई थिंक जर्नी वहीं से चालू हुई कि एंड व्हाट. इट वाज एन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी बेसिकली. आई वाज एक्चुअली, वी बोथ वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. And rather we than both were actually preparing for something of our career and post. something else was the priority, and this came like a shock, not surprise. So yeah, and I normally see कि whenever there is a news that somebody is pregnant, it is a very happy moment for that person. But for me, it was totally opposite. It was at a point quite devastating for me, because life was at a very different stage, different priorities were there, and we were really not mentally and financially prepared for this particular pregnancy. Actually, the entire focus was career, and we thought this will be a huge setback To, and then it was a setback sometime, I feel, but then I am very happy that we courageously continued it. We took that because taking that decision of, because it was very easy to not continue it. It was very easy. There are like हाँ, और वो it was an easy decision to take. Abortion कभी भी आसान होता है. हाँ, but then to continue it, to face the intra pregnancy complications, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस फेस करो, फिर उसमें तुम्हारा हेल्थ को प्रायोरिटी, या हेल्थ को प्रायोरिटी मिल जाती है, एंड देन अगेन एक सेटबैक आ जाता है करियर में. तो दैट वाज अ चैलेंजिंग टाइम. एंड देन आई थिंक ये जो सब स्ट्रेस अक्यूमुलेट हुआ था थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ये अफेक्ट हुआ पोस्ट प्रेगनेंसी फॉर द, जब वो बच्चा हाथ में, तो ध्यान में अरे अभी क्या. एंड देन प्रत्युष वॉज अ प्रीमैच्योर बेबी, तो वो भी एक चैलेंज था टू नेविगेट. NICU एडमिशन, उसका NICU स्टे. तो फिर आई थिंक इट हैज ऑल परकोलेटेड, लीडिंग टू अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन काइंड ऑफ अ स्टेट. एंड देन आफ्टर दैट जो लाइफ में, व्हेन दैट वाज अ टाइम व्हेन वी वर नॉट टुगेदर फॉर after that particular, like when Pratyush was 6 months or so that continued in the form of major depression. एक्चुअली वो मैं बोला ना, मुझे तो जैसे उन लोगों ने संभाला, और फिर दे वर क्लियर कि व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए. ये पीरियड था जब मुझे लगता है ना कि मेरी मैक्सिमम ग्रोथ हुई, हाँ, मेंटली एंड इमोशनली. कि फ्रॉम क्या बोल सकते हैं, हैविंग द नॉलेज और एक्चुअली बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल एंड ग्रो रिस्पॉन्सिबल, एंड क्या बोलेंगे ना, नॉट जैसे नॉट यूजिंग नॉलेज एज अ शील्ड बट लाइक एन अम्ब्रेला, जो टर्म है. तो उस पीरियड में वो बहुत रियलाइजेशन था और ग्रोथ थी. एक्चुअली उसके बाद में देयर वाज अ बिग रियलाइजेशन, आई थिंक हम दोनों को हुआ कि लाइफ इज नॉट स्टैग्नेंट. लाइक एक माइलस्टोन अचीव कर लिया तो दैट्स द एंड, ऐसे नहीं होता. वी हैव टू कीप ऑन अचीविंग, वी हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग. सो वर्क इन प्रोसेस जो बोलते हैं, तो वी, अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोसेस. कभी ऐसा सोचा क्या कि अगर वो प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू की रहती और ऐसे ही आगे बढ़े रहते,
आज प्रत्युष को देख के वैसे तो नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं हो सकता है। आई डोंट रिग्रेट. Yes, that time it was like very difficult to handle, but today I am like the best decision we have taken in our lives is to continue that. Continue the pregnancy. Because कहीं ना कहीं जो हम अगर उसको कंटिन्यू नहीं करते और फिर अगर हम सेपरेट हो जाते तो शायद हम मिलते या नहीं मिलते नहीं पता. Pratyush is one of the major reasons why we came back to each other. So I think that is the best decision we have taken. So somewhere down the line, what I understand is a craziness. Then Pratyush, ये चीजें हैं जो which have made us to continue and go. Maybe it is more of a craziness. And वो madness, वो craziness, the passion for each क्वेश्चन other. जो मेरे मन में हमेशा आता है ना, मतलब जो मुझे बहुत ऐसे पूछने की इच्छा होती है. So we were in court. हाँ. ठीक है. एंड वी हैड साइन दैट, जो आज भी पेपर है कोर्ट में कि वी वांट टू. पर एक लास्ट स्टेप रहता है कि जज के सामने बोलना होता है कि भाई हमने हमारे होशो आवाज़ में बगैर कोई बोले क्या बोल सकते हैं, विदाउट एनी प्रेशर और नॉट इन इंडल्जेंस ऑफ एनी ड्रग, ये वो सब हम सेपरेट होना चाहते हैं. तो वो स्टेप ही बचा था एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो उस दिन वो स्टेप नहीं हुआ. एंड तो हम ठीक है अब नेक्स्ट डेट पे ये करेंगे. एंड दैट नाइट यू कॉल्ड मी आफ्टर 3 when I trying to reach you for so many years, that night you called me कि मुझे तुझसे बात करनी है. और वहाँ से वो क्या था? आई थिंक दैट वाज नहीं पता एक्चुअली. ये रीज़न मुझको मैंने माई पेरेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मी सो मेनी टाइम्स, जो आज तूने पूछा, मगर मेरे पास में उसका आंसर नहीं है. आई रियली डोंट नो क्या हुआ, बस कुछ तो हुआ. देयर वाज सम शिफ्ट एंड आई वाज लाइक कि नहीं, अगर इफ इन दिस लाइफ टाइम आई हैव टू बी विद समबडी दैट इज यू. तो क्योंकि इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि रेणुका कॉल्ड. मुझे नहीं पता. आई हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन. यानी मम्मा पापा ने मुझको ये क्वेश्चन पूछ के इतना परेशान किया है फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, बट आई हैव नो आंसर टू इट. इट जस्ट हैपेंड. और वो ना मुझे एक वो चीज़ होता है. और फिर हम लोगों का बात शुरू हुआ. मैं वर्धा आया फर्स्ट टाइम वापस मिलने, मतलब फर्स्ट टाइम इन द सेंस आफ्टर दिस a long time. आई रिमेंबर आई हैड बुक्ड माई रूम एंड यू टोल्ड कि नहीं तू कॉलेज के यहाँ पे बिल्कुल मत आना, आई विल कम इन द होटल टू मीट यू. मैं सोच रहा था रेणुका आएगी तो मैं बात क्या करूँगा. मैं शुड आई हग हर, शुड आई नॉट हग हर, शुड आई बहुत ही मेरे ऐसे क्वेश्चन थे कि अरे व्हाट नेक्स्ट. बट इट वहाँ से वो जर्नी काफ़ी अच्छे से चालू हुई. जैसे तुमने कहा कि यू वर डिवास्टेटेड फॉर आफ्टर यू लिसन टू न्यूज़, बट ये मदरहुड ने कैसे शेप किया है तुम्हारी जर्नी को? Motherhood has actually shaped me in a very different aspect, as in प्रत्युष आने के बाद में ना मुझे more than a motherhood, I thought I got somebody जो मेरा ही है. And I was very possessive for him. अभी वो चीज़ कम हो रही है because I can understand कि now the child is growing, he is going to soon have his own world. तो वो जो एक emptiness आता है मदर्स के लाइफ में, दोज हु आर लाइक फॉर होम देयर चाइल्ड इज द ओनली थिंग इन देयर लाइफ, आई थिंक दैट विल नॉट बी देयर विथ मी. बिकॉज आई नो कि जब वो पॉजिटिवनेस रहता है तो हाउ द चाइल्डहुड बिकम्स. बिकॉज माई मदर वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट मी. शी वॉज वेरी पॉजिटिव एंड देन दैट she was very possessive, and then that possessiveness, my mother was very possessive about me. तो क्या होता है ना, when you are possessive about a person, you forget that person, you forget that कि वो भी एक अलग इंसान है. तुमको ऐसे लगता है कि उसकी लाइफ हाँ है. तुमको ऐसे लगता है कि तुम और वो एक ही हो. तो वो जो एक सटल डिफरेंस है ना, वो मैंने बहुत जल्दी सीखा कि नो, ये बच्चा एक दूसरा इंसान है, मैं एक इंसान हूँ, एंड वी आर डिफरेंट. दो ही इज़ माई सन, बट ही हैज़ हिज ओन लाइफ. आई कैनॉट ऑलवेज बी देयर टू इंटरफियर इन टू एवरीथिंग वॉट ही इज़ डूइंग. बट उसके साथ साथ में आई हैव टू बी देयर विथ हिम टू सपोर्ट, इवन इफ आई नो समटाइम्स दैट ही मे फॉल डाउन. So we have to be stronger to manage and
तब वो बच्चे को संभालने के लिए हमको उससे ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है कि ठीक है, इवन दो आई सपोर्टेड, आई न्यू आई सपोर्टेड यू, आई न्यू समवेयर कि यू मे फॉल डाउन एंड देन आई एम देयर इवन इफ यू फॉल डाउन. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एक थॉट है जो मैंने बहुत रियलाइज़ किया इतने में, आई tried my level best to inculcate that thought into myself. And then today with Pratyush the relation has even changed. He has become more of a friend because now he is 11 and अभी वो 11 का है. So now अभी हमारा conversations a lot goes on sexuality education, it goes a lot on his friends, it goes a lot on the social issues. यानी अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो ही स्टार्टेड आस्किंग कि ये क्यों हुआ होगा या व्हाट इज़ द सिविक सेंस दैट ही इज़ गेटिंग. सो अभी जो उसके साथ में एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है, इट इज़ मोर ऑन अ पेरेंटिंग प्लस फ्रेंडलीनेस इनटू इट, जो मैंने मॉडिफाई किया है. व्हाट अबाउट यू? हाउ इज़ योर जर्नी एज अ फादर विद प्रत्युष? बिकॉज when we were not together, Pratyush was with me, and Pratyush got introduced to you as a father when he was 5 years. So how was it for you? What difficulties you faced? फादर एंड सन का एक रिलेशन होता है जो नॉर्मल होता है, ऐसे चलता है. प्रत्युष आया, मुझे समझ में ही नहीं आया ये क्या हो रहा है. और पहले ही दिन है ना, ऐसे हुआ कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है. इट गॉट सो इरिटेटेड कि आई स्लैप्ड हिम, इफ़ यू रिमेंबर, इन कोल्हापुर. तो वो आदमी, मुझे नहीं समझ में आ रही ये हुआ क्या. वो तेरे पास आके बैठा रो रहा था एंड इट बिकेम मोर डिफ़िकल्ट. एक है ना, बहुत कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ा था टू डेवलप दैट रिलेशनशिप विथ प्रत्युष. और एक जो चीज़ मुझे और ध्यान में आई ना कि उसके लाइफ में क्या चेंज आया, तो प्रत्युष बहुत डरा हुआ रहता था पहले. अगर तुझे याद, उसको हाइट पे, ऊंट पे बैठना है, कुछ भी करना है तो उसको डरा, और उसको कुछ तो ऐसे करना पसंद रहता था, मस्ती करो, ये करो. तो मैं उसके साथ कभी, फिर वो मस्ती कर, उसका डर निकालने के लिए उसके साथ वो तो वो रिलेशनशिप ऐसे चालू ना कि कोई तो है मेरे साथ सपोर्ट के लिए. देन प्रत्युष को कैसा होता था ना कि जब उसको ध्यान में आता था ना कि यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसको डैडी की याद आती थी, अरे डैडी किधर है. एंड वहाँ से वो एक स्पेशल एफर्ट्स लेना, ध्यान लेना कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप, इट हैज़ टू बिल्ड. और मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में है ना उसमें, कि जो मेरे पापा मम्मी ने किया या जो एक करते हैं ना, कि पापा मम्मी का ऐसा रहता है ना कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं. दे ऑलवेज थिंक व्हाट कैन वी डू बेस्ट फॉर आवर सन और डॉटर. और मुझे तब रियलाइज़ होने लगा कि व्हाट इट इज़ टू बी अ फादर. एंड व्हेन आई सी यू, जैसे तूने अभी बताया, यू हैव चेंज योर रिलेशनशिप, बट फॉर यू इनिशियली इट वॉज, यू वेर जस्ट लाइक, क्या बोलेंगे ना, कडली बडीज थे तुम दोनों, बस तुम दोनों दिन भर अपना और मुझे ये लगता था ना कि प्रत्युष शुड ग्रो फ्रॉम ही, मतलब ना एक लड़का है वो, और उसके अलग चैलेंजेस रहते हैं लड़के के लाइफ के, तो ही शुड ग्रो इन दैट 3, 4, 5 years. नाउ दिस 6 years ऑफ स्पैन, आई थिंक आई लिव्ड दैट 10-11 years विथ हिम, जिसमें मैंने उसको ये भी कोशिश की कि मैं उसके साथ रहूँ भी, सपोर्ट भी करूँ, और उसके लिए सोचूं भी कि व्हाट शुड बी बेस्ट फॉर हिम. और ये सब करते वक्त ना मुझे सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में है कि यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक विथ योर ओन सेल्फ. एज अ पेरेंट्स आपको सबसे पहले आपको क्या चाहिए वो बहुत ऑथेंटिकली आपको पता होना चाहिए. या जस्ट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई किड, राइट, या जो हो रहा है वो नॉर्मली वैसे ही होना चाहिए. तो और इस चीज़ की वजह से मुझे लगा ना मेरे में बहुत ग्रोथ आई. हाँ, this even I have noticed in you that as a father, the way you have changed and molded yourself for Pratyush is not easy for everybody to do it in the time span in which you have done. So Pratyush is really lucky to have you as a father, क्योंकि no doubt your contribution in his life is tremendous and it is going to be tremendous. काफ़ी बातें हुई, तो अभी एक बाउंसर तुझे पूछता हूँ मैं. यू आर अ प्रैक्टिसिंग सेक्सोलॉजिस्ट, हाउ विल यू डिफाइन जो अपना इंटीमेट लाइफ रहा है वो, उसमें जो चैलेंजेस आए और उसमें जो बोर्डम्स आए, या जो हाउ, उसको तूने कैसे नेविगेट किया? See, mostly for me the intimate life was all based on the emotions I had. तो जब जो emotions hamper या
जब जो इमोशन पीक पे था इंटीमेट लाइफ वैसे टर्न ले रहा था. आई कुड अंडरस्टैंड दिस क्वाइट लेट आफ्टर लाइक वेरी रिसेंटली 2-3 साल पहले कि even in an intimate life there is something called as commitment and there is something called as emotional ups and downs. So I realized it कि ठीक है आज कभी कभी मेरा मन नहीं है, आई एम इमोशनली वेरी अपसेट, मुझे नई बात करनी है संजोग के साथ, but still I have to remember my commitment as a wife कि for this, not as a wife also, but for this relationship there is a commitment that there is a need of a intimacy for a relationship to grow and to sustain. So it is a very important part of a committed relationship to be intimate because and ये realize होने का सबसे बड़ा reason था that I am a practicing sexologist. So धीरे धीरे I could navigate that into myself also कि the ups and downs with emotions जो होते हैं I should be able and I should be even more capable of handling them, not affecting on any other aspects of life like intimacy and relationship. So this was a very big learning and very big navigation which I could do. Because क्योंकि अगर तुझे याद होगा तो when we were not married, that time when we were intimate तो सिर्फ guilt ही guilt था वो intimacy में. That intimacy had only guilt कि how could we do this, because there was no name, no official name for the relationship. वो guilt जो मैं carry कर रही थी it stayed with me for a long time and वो emotion जो guilt का रहता है when it is there with you as a human being, it affects your personality to the core. So I am really thankful that I have started practicing this particular because इसको इतना एक अच्छा spiritual base है ना जो जिसने मुझे बहुत elevate किया है मेरे life में. I really thanks you and the family कि they are not opposing me to practice sexology and they are not opposing me to tell that I am a sexologist. Otherwise for a female to practice this particular is another big challenge. मुझे ना बहुत लोगों ने ये बात पूछी है एक्चुअली आज तक कि हाउ कैन यू अलाउ, तो आई एम लाइक अलाउ ये तो पहले तो मेरे को ये हो गया अलाउ क्या, मैं तो आई एम हैप्पी शी इज़ डूइंग दिस, क्योंकि मैं मेरे बारे में बात करूँ ना, मुझे मेरे लाइफ में इस चीज़ के बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की. सो एज अ चाइल्ड, एज अ बॉय और as a young adolescent, how was your psyche towards sexuality? मैंने एक स्टोरी सुनाता हूँ. आई थिंक मैं 16 या 18 ईयर्स का रहा होगा एंड देन जो अभी मुझे समझ में आया ना, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल मॉर्निंग इरेक्शंस. ठीक है, नॉर्मल मॉर्निंग इरेक्शंस. तो ये तब पता नहीं था एंड देयर वाज अ नॉर्मल मॉर्निंग इरेक्शन. तो जो मेरा दूसरा कज़िन था उसका चलो माधुरी के बारे में सोच रहा है या जूही के बारे में सोच रहा है. अरे मैं सोच रहा हूँ ये ऐसे क्यों बोल रहा है क्योंकि पता ही नहीं था, किसी ने कभी कोई ज़िंदगी में बात ही नहीं की थी कि क्या चीज़ें होती है. एंड जब कॉलेज में आते हैं तो सिर्फ एक ही रहता है कि गर्लफ्रेंड चाहिए. इन अ सेंस देयर वर रिलेशनशिप्स, आप देखते हो कि आपके कलीग्स के रिलेशनशिप्स है, आपके फ्रेंड्स के रिलेशनशिप है, बट व्हाट आर दे एक्चुअली, इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता है. बट विथ यू इट वॉज लाइक कि यार इसी के साथ शादी करनी है, अभी पता नहीं क्यों, ठीक है, इसी के साथ शादी करनी है. वो पूरा जो एक आई थिंक यंग अडल्ट का या एक वो जो पीरियड है तो उसका पूरा रिबेलियसनेस एंड पूरा एनर्जी वो इसी पे था कि इसी के साथ शादी करनी. वो हुआ. फिर जिस तरीके से चीज़ें हुई पोस्ट मैरिज, फिर वापस जब हम वापस मिले ड्यूरिंग दैट टाइम ना आई रियलाइज्ड कि यार इतनी सारी चीज़ें होती है ना. मेंटल हेल्थ अलग होता है, इमोशनल हेल्थ अलग होता है, आपका फिज़िकल हेल्थ अलग होता है, वैसे आपका इंटीमेट हेल्थ होता है, इतनी चीज़ें होती है. वो करते करते आजू बाजू में जब हम देखने लगते हैं तो ऐसे ध्यान में आता है बाप रे कितने लोगों को मदद की ज़रूरत है, उन तक सही नॉलेज ही नहीं है, वो बात ही नहीं कर रहे हैं इस बारे में. मुझे अच्छे से याद है कुछ डॉक्टर्स मुझे मिले थे बीच में और थे सर हम बता नहीं सकते कि मैम का टॉपिक इतना अच्छा है. वो बोले सर हम लोग जब ग्रुप में भी बात करते हैं तो वो इतना रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और हम जब वाइफ के साथ भी बात करते हैं तो इट बिकम्स सो रिस्ट्रिक्टेड. बट देन आफ्टर सीइंग फ्यू ऑफ योर वीडियोस और कुछ चीज़ें दे वर लाइक कि सर इट ओपनड अप समथिंग अमंगस्ट अस ऑल्सो.
तो मुझे जब ये फीडबैक मिलते हैं, जब मैं अपने रिलेशनशिप को देखता हूँ, और मुझे समहाउ पता नहीं, मुझे ना आई वॉज नेवर अनकम्फर्टेबल विद दिस कि हाउ टू टॉक विद अ फीमेल और अ गर्ल. मुझे अच्छे से पता है मेरे यूजी पीजी के डेज में मेनी ऑफ द फीमेल पेशेंट्स वे वेरी वेल कंफर्टेबल टू टॉक विथ मी. बहुत सारे पेशेंट्स मुझे वो सब चीज़ें शेयर करते जो मुझे भी नहीं पता वाई आर दे शेयरिंग इट विथ मी. एंड उनको बस ये लगता है कि वी हैव अ सेफ स्पेस टू शेयर. तो मुझे ऐसे लगता है कि या रेणुका कैन क्रिएट दैट सेफ स्पेस. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि कभी पापा मम्मी भैया भाव या पूरी फैमिली में कभी किसी को ये लगा ही नहीं कि अरे कैसे. हाँ. एंड इनफैक्ट दे ओपन, मतलब बहुत अच्छे से वो तेरे सब वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं. दैट इज़ वन थिंग. तो दिस थिंग्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन अ नाइस वे. और क्योंकि मुझे पता है जब तू साथ में नहीं थी तब क्या हो रहा था, तो आई उसके बाद क्या हुआ, व्हेन वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर रिलेशनशिप तो क्या हुआ. और जैसे तूने कहा लास्ट आई थिंक 3-4 ईयर्स से जब से हम दोनों ने भी ये सब्जेक्ट पे साथ में थोड़ा सा स्टडी किया है, तो वो ध्यान में है कि हाउ नेचुरल द थिंग्स आर एंड लेट द थिंग्स बी नेचुरल. डोंट कॉम्प्लिकेट इट, डोंट अटैच इफ्स एंड बट्स एंड टैबूज, ये कैसे वो कैसे. नो नीड, इट इज अ सिंपल थिंग. ने जैसे तुम सुसु पॉटी खाना खाते हो उतना ही नेचुरल है दैट यू आर बिकमिंग इंटीमेट विद समवन. जब हम अलग थे, पीजी कर रही थी तो आई लिसन फ्यू स्टोरीज की फ्यू पीपल अप्रोच्ड यू. कुछ मजेदार किस्से? कुछ भी नहीं. यानी तब तो ऐसे होता था कि पीपल यूज टू अप्रोच मी, दे यूज टू बी वेरी होपफुल. और जैसे उनको पता चलता था कि प्रत्युष भी है मेरे साथ में, they were like, okay ma'am, we will see through it. And then that was not a priority for me. and वो दिमाग में भी नहीं था कि किसी के साथ में अभी कोई कुछ करना है, क्योंकि एक तो प्रत्युष था मेरे साथ में. एंड देन आई वॉज अ पर्सन सिंस चाइल्डहुड, जो मेरा एटीट्यूड था टूवर्ड सेक्सुअलिटी, इट वॉज ऑल कि नहीं, यानी इट वॉज वेरी जजमेंटल इनिशियली. जब when I was into my growing years, at that time मेरा thought process was always कि this is something which is wrong. Initially. On the contrary, मेरा शुरू से ऐसा था कि मतलब मुझे किसी ने कभी कुछ मुझसे बात नहीं की, बट जो मैंने पढ़ के जो मैंने समझा था, मेरे लिए ये था कि दिस इज सो नेचुरल. And for me it was like next to unnatural thing or next to the sin I will commit in my life. तो मुझे अभी भी याद है जब वो जो फेज रहता है ना टीनेज का, जब when you start having those hormonal changes and when you start having those initial infatuations and crushes, तो वो भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था हैंडल करने के लिए. एंड दैट वॉज one reason I used to restrict myself from lot of social gatherings. मैं बहुत अकेले रहना पसंद करती थी out of that fear कि अगर मुझे कोई अच्छा लगा या कुछ infatuation हुआ and then किसी को वो ध्यान में आया कि इसको ऐसे लगा, तो how embarrassing it would be. तूने बट एक चीज़ नोट की क्या, तूने कितना भी ये किया, ultimately you had a love marriage. Ultimately I had a love marriage. And then for me it was very difficult to digest on that particular sexuality aspect of life, but career I have chosen for myself is really for myself, and God has actually put me into it. वो somewhere the divine has worked कि मैं यही करूँ to come out of my state of mind regarding it, to come out of मेरा guilt out of it, and then to help people कि no, this is normal, natural, it's okay, and along with that to maintain that purity that is attached to it. यानी सिर्फ अगर हम सेक्सुअलिटी को इतना नॉर्मलाइज करने लगे कि no, it is normal, it's okay, then it becomes promiscuity, which is also not the way of life it should be. तो आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई वॉज लाइक दैट. मैं एक वो स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे सेक्सुअलिटी इज इक्विवेलेंट टू गंदा, इज इक्विवेलेंट टू सिन, इज इक्विवेलेंट टू गिल्ट, वहाँ से मेरा जर्नी मैंने आज यहाँ तक किया है, वेयर आई फील इट इज़ नॉर्मल, नेचुरल,
it's okay. Along with that, there is a purity and there is a lot of depth into it. So this journey of my own self has been tremendously और वो amazing. मैं देखता भी हूँ तेरे अंदर कि जब हम मिले थे तो जो तेरा एक पूरा अप्रोच था, फिर उसके बाद पोस्ट मैरिज और उसके बाद आज जो एक तेरा अप्रोच है, और ख़ास बात ये है ना कि अपने को ऐसे बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं ना कि आपने तो लव मैरिज किया, हमको बताओ ना. हाँ, तो उस पूरे इसमें कि ये चीज़ भी ध्यान में आती है कि लव is not equal to sex. Definitely, love is not equal to sex. Sex. Actually, sex is an act in itself. Love is love. And definitely in any relationship, sex plays a role. Intimacy plays a role. But it is एक ही चीज़ नहीं है. Yeah, now बहुत सारी चीज़. intimacy also अगर हम देखेंगे तो there are n number of it ना. It's a physical intimacy part which we are discussing, but there is something called emotional intimacy भी है, spiritual intimacy भी है, on a social level intimacy भी है. तो when everything is balanced out and a relation should be actually a cocktail of all kinds of intimacies, तो ही वो relationship ना टिकता है, तो ही उसमें spark रहता है. अगर सिर्फ हम फिजिकल इंटीमेसी पे डिपेंड रहे ना तो एक लेवल के बाद वो बोर हो जाता है. क्या है, सेम तो चीज कर रहे हैं. तो इट हैज टू हैज अ ब्लेंड ऑफ इंटीमेसीज. ये जो बात कही ना, लोगों को ये ध्यान में नहीं आता कि वो बोर हो जाते हैं वो फिजिकल एक्ट से. हाँ, और फिर वो क्या करते हैं ना, दे ट्राई टू डू समथिंग, दे फील कि दे शुड चेंज द पार्टनर्स. राइट, बिकॉज दे इक्वेट द फिजिकल एक्ट इज इक्वल टू फिजिकल पार्टनर. हाँ. So they feel कि if I'm bored with in this physical act, changing the body will give me some pleasure. But actually that is not true. अगर see in today's world अगर हम देखेंगे तो there are a number of couples जो after a particular point they get bored with their partners. They get that sluggishness into the relationship. और मुझे बहुत लगता है कि ये sluggishness जो है is more because they don't have communication among themselves. Among the partners. So communication is one thing about everything. Like अगर झगड़ना भी है, ये मुझे बहुत बाद में समझा, अगर झगड़ना भी है तो झगड़ लो, communicate करो, let the other person know what you are thinking. And you should be strong enough to understand what the other person is thinking. तो ही वो relationship आगे बढ़ेगा. और शायद से it is not about changing the partners, it is about changing, क्या बोल सकते हैं, your thought process, changing certain circumstances, right, bringing some change in yourself. उसी पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करो कि जो तुमको something for a higher level, जो हम कहें कि you know. Yeah, and have some good social goals with your partner, have some good career goals with your partner. Make your partner your business partner so that you will behave at a point कि no, he is my business. So you should play a number of roles with your partners. Yeah. अच्छा, so what about you? How did you navigate when we were not together on the intimacy level? पहले जैसे कहा ना, पहले 1 साल तो it was like कि how is it possible, उसी में गया. फिर थोड़ा सा खुद को स्टेबलाइज करने में गया. फिर जब मैं स्टेबल हुआ तो ये ध्यान में आया कि दिस रिलेशनशिप इज़ अबाउट टू नाउ एंड. और अपन उस पूरे प्रोसीजर में लग गए थे. वो इतना ये था कि घर वालों का तो यहाँ तक शुरू हो गया था कि चलो लड़कियाँ देखते हैं, बायोडाटाज आने चालू हो गए थे फिर से. ड्यूरिंग दैट पीरियड देन आई मेट अ गर्ल, वी वर फ्रेंड्स, बट समहाउ ना ऐसे हुआ कि नहीं यार रेणुका, एंड आई डोंट नो व्हाट इट वाज, नहीं यार. एंड आई टेल यू, जो फ्रेंडशिप हुई थी उसमें कभी ऐसे लगा कि दैट गर्ल मोर देन मी, दैट गर्ल वाज होपफुल कि समथिंग विल टर्न आउट इवेंचुअली. आई वाज लाइक कि यार आई डोंट नो, आई एम जस्ट, मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है और आई एम कमिंग आउट ऑफ समथिंग. एंड आई टेल यू, तेरा उस दिन कॉल आया, उसके बाद हमने बात चालू की. द फर्स्ट थिंग आई उसको जाके बोला कि नहीं ये अब कुछ नहीं हो सकता है. सो आई वाज लाइक रिलीव्ड. तो वो जो एक चीज़ है ना कि यू नो, पार्टनर इज रेणुका. मैं ये नहीं बोलूँगा कि देर आर नो इन्फैचुएशंस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि देर आर इन्फैचुएशंस. ऐसे भी नहीं होता कि यू आर हैविंग डेली इन्फैचुएशंस और समथिंग, बट समटाइम्स यू जस्ट किसी की कोई चीज़ आपको पसंद आती है. ये चीज़ मुझे ना अभी
ऑनेस्टली आई थिंक जो अपना 4 से 5 साल का जर्नी चालू हुआ है इन अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट एंड यू प्रैक्टिसिंग दिस सब्जेक्ट एंड ये उसके बाद से अपना भी कितना ओपन इस पे कम्युनिकेशन हुआ है कि होने लगा है कि यार हाँ ठीक है यार ये ओके यू लाइक दैट पर्सन इन दैट वे और यू इट्स ओके राइट. सो आई थिंक ये जो स्पेस विच वी हैव लर्न्ड टू गिव इट ईच अदर, डू यू फील कि अगर कपल्स ने ये स्पेस एक दूसरे को दिया तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो रहते हैं उसका परसेंटेज कम होगा और दे विल बी मोर इनटू देमसेल्व्स? उनका कम्युनिकेशन बंद हो जाना आपस में, यहीं से दूसरी चीज़ें शुरू होती है. इनिशियली इट स्टार्ट्स एज अ वे टू कम्युनिकेट विद समवन. प्रॉब्ली दैट इज वन ऑफ द रीज़न. आई फील स्टिल द परसेंटेज ऑफ पार्टनर्स जो जस्ट बिकॉज physically I am not satisfied and therefore they are having extramarital, or even if they are in a committed any kind of relationship and they are having something more than physical, it is about communication कि आप आपके पार्टनर से किस लेवल पे कंफर्टेबल हो बात करने में. अभी जैसे ना एक तूने एक क्वेश्चन पूछा ना, तो ये आई थिंक मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटिव होगा क्योंकि whenever a male client come to you, so generally we try to give them appointment on a particular slot कि जब हम दोनों अवेलेबल रहे. तो एक जो कॉमन अगर तूने नोट किया है ना, दैट इज़ बिटवीन 35 to 45 अ पर्सन जिसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, और वो पर्सन उसको कुछ तो करना है अबाउट सेक्सुअलिटी, और उसको लगता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है. राइट. एक चीज़ ना मुझे भी यहाँ पे बहुत रियलाइज हुई अबाउट द फीमेल्स इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप लाइक 35 to 45-50 कि इवन दे वॉन्ट टू डू समथिंग बट उनका वो वॉन्टिंग टू डू समथिंग सिर्फ वहीं पे खत्म हो जाता है. दे डोंट टेक एफर्ट्स ओवर इट. लाइक सी यू वॉन्ट योर हस्बैंड टू बी योर लवर बट वॉट आर यू डूइंग टू बी हिज गर्लफ्रेंड? आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ? आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड? आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशंस? यू आर निग्लेक्टिंग एवरीथिंग. एंड देन यू एक्सपेक्ट कि सामने वाले ने ही मेरी हर चीज़ पैम्पर करना चाहिए. भाई वो तो पॉसिबल नहीं है ना, आपको ही एफर्ट लेना पड़ेगा. मुझे जो और एक चीज़ लगती है ना कि कपल्स को ये भी ध्यान देना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम फैमिली, किड्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर. दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग कि व्हेन आई यूज्ड टू गेट इमोशनली अप्स एंड डाउन्स, तो वो कमिटेड रिलेशनशिप का एक कमिटमेंट है. हाँ. वो भी समझना और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कपल्स टू अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक यही चीज़ लैक करती है व्हाई दे हैंग ऑन टू समबडी एल्स आउट ऑफ देयर कमिटेड रिलेशनशिप. बिकॉज वहाँ पे तो तुमको कमिटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है ना, वहाँ पे तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं है. इट्स जस्ट फॉर फन फॉर दैट स्मॉल टाइम. बट देन बोथ ऑफ देम शुड अंडरस्टैंड कि अगर ऐसे हुआ भी, सपोज एक पार्टनर है एंड सपोज वाइफ है एंड शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद समबडी, तो आई थिंक ये कम्युनिकेशन में क्लियर होना चाहिए. द वाइफ और द पार्टनर हु इज हैविंग अनदर रिलेशनशिप, वो पार्टनर को ये क्लियर होना चाहिए कि हाउ सीरियस दैट पार्टनर इज अबाउट दैट रिलेशनशिप. व्हाट वाज द मतलब वो नीड क्यों अराइज हुई, वो नीड क्यों आ रही है, वाई ही इज गेटिंग ट्रैप्ड इनटू दैट आउटसाइड रिलेशनशिप, व्हाट इज लैकिंग इन द प्रेजेंट रिलेशनशिप जो वर्कआउट होना चाहिए. और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक ये भी है ना कि एक चीज़ होती है कि समटाइम यार इट इज़ जस्ट फन एंड समटाइम इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. बट मुझे लगता है ना कि हर एक को अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए, अपने कमिटमेंट्स पता होने चाहिए कि व्हाट आर दे डूइंग. राइट. तुझे कभी ऐसे लगा कि ये स्पार्क जो अपने में है ये कम हुआ और वो वापस कौन सी चीज़ की तो वो यू रियलाइज कि अरे यार इट इज़ अगेन बैक अगेन? हाँ, वो कम हुआ, वो तो मुझे बहुत बार लगा फ्रैंकली स्पीकिंग. बट देन आई थिंक हमारा सबसे प्लस पॉइंट था द कम्युनिकेशन दैट वी कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर कि अभी मुझे लग रहा है कि ये स्पार्क कम हो गया, तो वी नीड टू डू समथिंग एल्स, वी नीड टू डू समथिंग न्यू. एंड देन आई थिंक स्पेंडिंग टाइम विथ योर पार्टनर इज रियली इम्पोर्टेंट. है कुछ काम नहीं है तो भी तुम थोड़ा टाइम तो भी अपने पार्टनर के साथ में 15 दिन में एक बार जस्ट बी देयर. तो दैट मेक्स अ लॉट. डेली सम टाइम विथ योर पार्टनर और
weekly or monthly, or I will say sometime where you are just as partners trying to be there for each each other. other यानी तब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फैमिली नहीं है, दे आर देयर, वो दे आर इन प्लेस, बट इट इज नाउ योर प्रायोरिटी टाइम जो है वो तुम्हारे पार्टनर का ही है. तो ये टाइम हर किसी ने फाइंड आउट करना चाहिए, बिकॉज देन दैट कीप्स अप द स्पार्क. यू मे नॉट डू सम फिजिकली, कोई जरूरत नहीं है, बट जस्ट बी देयर. दैट ऑल्सो Love each other, take care for each other. दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. देख, मैं ना मेरे इस पे से एक बात बताऊंगा ना अभी, ये जो पूरे इसमें से मुझे अच्छे से याद है, हम पीजी प्रिपरेशन को गए थे नासिक में. ठीक है, तो है ना एक कॉमन कॉलेज में बेवकूफ़ी चलती है कि लड़का लड़की राखी बांधो. विच आई फील बेवकूफ़ी इसलिए क्योंकि राखी बांधने से ज़्यादा ना अंडरस्टैंड योर इमोशंस, व्हाट इज़ हैपनिंग. तो नासिक में थे, राखी का आया था, तो मम्मा का फ़ोन आया था तुझे, और तुझे अच्छे से याद होगा अपना 6 लोगों का ग्रुप था. तो मम्मा, रेणुका आदित्य को राखी बांधी, रेणुका चेरी को राखी बांधी, रेणुका संजोग को राखी बांधी. एंड दैट टाइम यू आर लाइक कि नहीं, मतलब यू अंडरस्टूड कि नहीं, मुझे संजोग को आई डू नॉट वांट टू. दैट टाइम एक्चुअली अपना रिलेशन ऐसे ये भी नहीं था कि वो It was जस्ट that बिगनिंग, initial beginning हाँ of द ये. बट फ्रॉम देयर जो मुझे लगता है ना कि अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट यू वांट और क्या चाहिए, वहाँ से फिर जो जर्नी शुरू होती है. तो मुझे ये लगता है ना कि वेदर यू आर इन कॉलेज, वेदर यू आर इन अर्ली डेज ऑफ कोर्टशिप, और वेदर यू आर इन मैरिज, जैसे मैं पूरा खुद को जब रिलेट करता हूँ, तो वो जर्नी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है. उस समय अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. बीइंग प्रेजेंट टू योर पार्टनर एंड नॉट बीइंग बॉग्ड डाउन बाय सराउंडिंग्स, right. ये बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या होता है ना, सराउंडिंग्स आपके रिलेशनशिप पे हाँ, और हावी हो मुझे जाती जो है. मेरा एक ये है, इट इज़ कि यू मस्ट गिव योर रिलेशनशिप अ सेपरेट प्लेस. प्लेस, हाँ. All your other relationships, like मेरा your relationship with your extended family and your husband's relationship with his extended family should not affect your relation. यानी हमारे घर में मेरा या मेरे हस्बैंड का मेरे पेरेंट्स के साथ में कुछ हुआ है, तो वो हम दोनों के रिलेशन पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड लर्न दैट दिस इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप, दोज आर डिफरेंट रिलेशनशिप्स, and every relationship has their own pros, cons, commitments and everything. ये गलती भी बहुत सारे कपल्स करते, रादर हमने भी बहुत सालों तक की है. आजू बाजू की चीज़ों को बहुत अफेक्ट किया Yes, है. वो हमारे इस पे बहुत अफेक्ट करके लिया है, which we learnt very hard. Yeah. But I think overall it's a nice journey, and It is a good journey going on. Let's hope it अभी क्या continues to होप grow. करेगा, अभी तो करना ही. Yeah.